Hello students. Now today we have to start with the chapter number 6 of 10th class from geography portion. The name of the chapter is manufacturing industries. देखिए स्टूडेंट्स, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी का बेस बनाता है, राइट. सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री. Means if we talk about the post-independence time period, right, or we can say just pre-independence time period, at that time we were having very less number of manufacturing industries in our country, or we can say some textile industries, they were mainly developed in our country. But we can say after industrial revolution, several kinds of industries have developed in our country, or we can say when we have changed our industrial policy, means from mixed economic policy, then means in 1991 we have adopted LPG policy, liberalization, privatization and globalization. After that we can say that those liberal policies, or we can say global provisions, or we can say privatized provisions we have adopted in our economy. After that several secondary sector industries, or we can say manufacturing industries in our country have basically grown up. Right. So manufacturing industry, it provides huge development to the economy of the country, or we can say it also provides too much employment to the population of the country. Right. So in this chapter basically we have to discuss about the introduction about the manufacturing industries. So first we'll discuss the introduction part of manufacturing industries, then we'll discuss the importance of manufacturing. मतलब ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वील डिस्कस. देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, और वी कैन से टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री. तो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे कि हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब जीडीपी आप लोगों को पता है मीन्स द वैल्यू मीन्स वट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर कंट्री, द वैल्यू ऑफ दोज प्रोडक्शन दैट बेसिकली इंक्लूड्स इन जीडीपी, राइट. तो कंट्रीब्यूशन हम सेकेंडरी सेक्टर का भी पढ़ेंगे हम. देन इंडस्ट्रियल लोकेशन, मतलब इंडस्ट्रीज की जब लोकेशन होती है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट ऑल्सो वील डिस्कस. सो हाउ वी यूज टू लोकेट द वेरियस इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट रीजन्स, राइट. देन we'll discuss about the classification of industries. So classification of industries means we are having agro based industries, or we can say mineral based industries. So several kind of industries we are having, right. So classification of industries we are having on the basis of raw material, on the basis of their role, on the basis of capital investment. So various kind of classification we'll discuss in this chapter related to the manufacturing industries. And second last that we have to discuss that industrial pollution and environmental degradation. मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे environment पे भी impact डाल रही हैं. तो हम जो अलग अलग टाइप के हमारे जो पॉल्यूशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. तो ये सारे पॉल्यूशन भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. देन एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट ये डाल रहे हैं, हाउ इट इज बेसिकली वी कैन से दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज डिग्रेडिंग आवर एनवायरनमेंट, दैट ऑल्सो विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. देन एट द एंड मीन्स कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से, दैट ऑल्सो विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. एंड आफ्टर दैट means we'll conclude this chapter with few question answers, right. So let's begin with the introduction part of manufacturing industries. See, production of goods in large quantities by processing raw material to more valuable products is called manufacturing. In simple words, students, you can say the converting raw material, or we can say the process of converting raw material into finished products, that is called manufacturing. मतलब जब हम रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को हम एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट का मतलब विच इज रेडी टू कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स, दैट इज बेसिकली वी यूज्ड टू कॉल मैन्युफैक्चरिंग, राइट. सो कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. एंड द रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर. मतलब प्राइमरी सेक्टर से आपका रॉ मटेरियल जाता है कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फिनिश प्रोडक्ट्स में, राइट. सो द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और इकोनॉमी स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज
मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हम लोग मेजर करते हैं वो किसके कंट्रीब्यूशन से मेजर करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कंट्रीब्यूशन, राइट? क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो तो प्राइमरी का है, तो रॉ मटेरियल को हम कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग में हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं, तो हम प्राइमरी में उसका काउंट नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो टू एलिमिनेट दैट वी यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इनटू द जीडीपी, राइट? देन इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मेनली ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखते हैं, किस तरीके की विशेषताएं मैन्युफैक्चरिंग की हैं, राइट? सो इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने में बहुत हेल्पफुल है। हाउ? मीन्स आफ्टर अडॉप्टिंग प्रोविजंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हम लोग किस तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम लोग कमर्शियल फार्मिंग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर मेनली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इट इज बेसिकली हेल्पिंग इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर सिस्टम। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं ना कहीं मॉडर्न बनाने में बहुत हेल्पफुल है। मतलब कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिल रहे हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज आ रहे हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट in modernizing the agriculture system. Then it is basically we used to call backbone of our economy. Backbone मतलब ये हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। So backbone of our economy means this is very important sector. ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डे बाय डे कर रहा है, या फिर इंक्रीज हो रही है इसकी कंट्रीब्यूशन, राइट? तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी बेस प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बेस प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है, right? So it is basically we can say the fastest growing sector nowadays in our economy. That's why we used to call it a backbone of the economy. Then it providing jobs in secondary and tertiary areas. Yes, means day by day means after means adopting liberal policies. मतलब हम लोग इजीली अब लाइसेंस ले पा रहे हैं, हम कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, बड़े स्केल पर जॉब प्रोवाइड कर रहा है। और जो वो जॉब प्रोवाइड कर रहा है तो मतलब जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी। सो इट बेसिकली प्रोवाइडिंग जॉब्स एट लार्ज स्केल। इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। ठीक है, हेल्प इन पॉवर्टी मीन्स इट इज हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिड्यूस करने में कैसे हेल्पफुल कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है ये? मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को अगर जॉब मिलेगी तो हो सकता है उनकी जो हम कह सकते हैं कि उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, उनकी जो पर हेड इनकम है वो इंक्रीज होगी। सो आफ्टर इंक्रीजिंग पर हेड इनकम और पर कैपिटा इनकम दे कैन इजीली अवेल देयर बेसिक नीड्स। एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर द बेसिक नीड्स: food, shelter, cloth, education, sanitation and health. These are the 6 important basic needs according to International Labour Organization. Right? तो ये पॉवर्टी को रिड्यूस करने में मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। It helps in eradication of unemployment. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में बहुत हेल्पफुल है, राइट? तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक खत्म होगा अगर सेकेंडरी सेक्टर इंप्रूव होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव होगा। स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम ट्राइबल एरियाज के अंदर भी इंक्लूड कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम एस्टेब्लिशमेंट हम बैकवर्ड एरियाज में भी हम लोग कर रहे हैं, जिससे उस एरिया के लोगों को इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वहाँ पर हो सकता है हमें चीप लेबर भी इजीली अवेलेबल हो जाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द लोकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो हम बैकवर्ड एरियाज में या फिर ट्राइबल एरियाज में, उन ट्राइबल एरियाज का डेवलपमेंट भी होगा, साथ साथ में वहाँ की पॉपुलेशन का भी डेवलपमेंट होगा। सो वी आर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज through several programs which our government have launched, like integrated tribal development program. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ट्राइबल रीजन है हमारी कंट्री में, जैसे भरमौर रीजन इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसके अंदर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इज बेसिकली द एफर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, राइट? देन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड, मतलब हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। मीन्स जैसे जैसे हमारी कंट्री में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है और हु आर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, so we can say that if we are producing good quality of products, they will be highly demanded in the international market. We can compete easily in the international market with qualitative products. तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, और जब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा कहीं ना कहीं रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारी कंट्री के अंदर। सो इट विल हेल्प अ लॉट।
तो इफ अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो इट मीन्स हमारी इनकम भी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे बढ़ जाएंगे. देन ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल, means they also transform their raw material into several things like we can say the through agglomeration economies. मतलब एक दूसरे का यूज करके भी वो कई बार रॉ मटेरियल का यूज करते हैं. So these all are the importance of manufacturing industries. I hope you understand, right? Then second one, that is agriculture and industry. मतलब agriculture और industry, we can say that they both move together, और वी कैन से दे बोथ मूव हैंड इन हैंड. मतलब ये हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, हम कह सकते हैं. क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी डेवलप होगा, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल तो मेनली एग्रीकल्चर से आ रहा है. सो एग्रो इंडस्ट्रीज हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. मतलब बहुत सारी ऐसी एग्रो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है, उसकी प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल है. सो मेनी एग्रो इंडस्ट्रीज दे आर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. So many agro industries, they are developing fertilizers, pesticides or several kind of chemicals to increase the productivity of the agriculture crops, right? So industrial products like fertilizers, irrigation pumps, PVC pipes, जो आपके plastic PVC pipes हैं, tractors, machines, tools, they are helping in increasing the agriculture productivity. मतलब ये सब कहीं ना कहीं agriculture की productivity को increase करने के लिए ये सारे products कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं. और ये प्रोडक्ट्स से हम मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज में. और वो इंडस्ट्रीज से हम उसको बाद में कहाँ यूज़ कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में. तो हम कह सकते हैं वाइसा वर्सा प्रोसेस चल रहा है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे मूव हैंड इन हैंड और दे मूव टुगेदर, राइट? सो द नेक्स्ट वन, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. मतलब इस इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी नेशनल इकोनॉमी के अंदर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी नेशनल इकोनॉमी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है. फ्रॉम देयर वी यूज टू एनालाइज दैट हाउ मच स्ट्रॉन्ग दिस सेक्टर इज, राइट? सो द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द GDP has stagnant at 17% out of total of 27% the last 2 decades. मतलब स्टैगनेंट का मतलब एक कांस्टेंट लेवल पर चल रही है, ठीक है? तो 17% है, तो 17% मतलब एक कांस्टेंट लेवल पर है, जो एक स्टैगनेंट है, मतलब स्थिर हो चुकी है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन. बट नाउ वी कैन से दैट मे बी थ्रू मोर लिबरल पॉलिसीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मे इंक्रीज इन नियर फ्यूचर. So 10% that mainly comes from, means of 27 का हम 17% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है. 10% that mainly comes from mining, quarrying, electricity and gas only. ठीक है? तो 10% आपका वहाँ से मेनली आ रहा है. So in the last decade since 2003, right? तो 2003 के accordingly the growth rate has been from 9 to 10% per annum. But now means in this decade we can say, means after we can say that after 2020, means we can say that the growth of manufacturing sector have taken place at very fast rate. So we can say that means the growth rate of manufacturing sector per annum that may increases in recent years, right? So the National Manufacturing Competitiveness Council, that we used to call in short NMCC, right? So has been set up with the objective of improving productivity through proper policy interventions by the government and renewed efforts by the industry. मतलब NMCC को implement किया और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रोडक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड के साथ में करें और एक लेवल के साथ में करें जिससे हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बूम करे इंटरनेशनल मार्केट में भी और या फिर हम कह सकते हैं लोकल मार्केट के अंदर. सो दिस इज बेसिकली वी कैन से दैट इम्पॉर्टेंट एफर्ट of the government to increase the productivity as well as we can say the quality of the manufacturing products in our country, right? Then industrial location, students, it is very important part. Industrial location मतलब ये बहुत important है कि industries को locate करने के लिए कौन कौन से factors बहुत important हैं. तो जब industry की हम locate करते हैं तो हमारे mind में कुछ चीज़ें आती हैं. चीज़ें क्या आती हैं? Cost of obtaining raw material at site. मतलब suppose मैंने कहीं पर भी industry बनाई है, राइट? तो वहाँ पर उस इंडस्ट्री जिस भी तरीके की मैंने इंडस्ट्री बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल आएगा जिससे फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉस्ट क्या होगी?
क्योंकि कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस तरीके जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, फाइनल कॉस्टिंग किस तरीके से आएगी, राइट तो ये इस तरीके के हमारे माइंड में आता है। या फिर डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, मतलब किस तरीके से हम डिसीजन लें, किस साइट पर हम हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको कहाँ पर लोकेट किया जाए मेनली, राइट और फिर उसके बाद में जब प्रोडक्ट बना लिया हमने तो उसको किस तरीके से हम मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करें। सो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन हमारे माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे माइंड में आते हैं कि किस तरीके से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं विद सम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स, मतलब हम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देकर और हम किस तरीके से प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली वी कैन से दैट सेवरल थिंग्स विच यूज टू कम इन माइंड while we used to set up the industries, right? So industrial location, they are basically influenced by availability of raw material बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देन लेबर, किस तरीके की प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड किस तरीके की लेबर हमें चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए या फिर अनस्किल्ड लेबर से भी हमारा काम चल जाता है। तो अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के लेबर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, प्लस वो लेबर चीप है या फिर कॉस्ट, मतलब वो चीपली है या कॉस्टली लेबर है, तो वो भी हम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ज़्यादातर हम लोग कभी भी इंडस्ट्री जब स्टैब्लिश करते हैं तो हम चीप लेबर्स को हायर करने की कोशिश करते हैं, राइट। कैपिटल, कितनी इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूरत है, कितना पैसा हमें ज़रूरत पड़ेगा उस इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। पावर, वहाँ क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपरली है, क्या वहाँ से इजीली मार्केट रीचेबल है, क्या वहाँ मार्केट आसपास में है, सो दैट वी कैन सप्लाई आवर प्रोडक्ट्स इजीली, राइट। सो सेवरल मीन्स दीज आर बेसिकली इनपुट्स। इनपुट मतलब कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में नेसेसरी हैं, तो रॉ मटेरियल हो गया या फिर कुछ जो अदर जो कंपोनेंट पार्ट्स है वो मेनली इनपुट्स हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन मेनली हो रहा है, तो लैंड भी चाहिए हमें प्रोडक्शन करने के लिए, हवा में तो हम कर नहीं सकते। लेबर भी चाहिए हमें उसको बनाने के लिए, क्योंकि सारी काम हम मशीनरी से कर नहीं सकते। कैपिटल, पैसा भी चाहिए, बगैर पैसे के कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो और इसका ऑनर भी चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको प्रॉपरली एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे हम प्रॉपरली प्रोडक्शन कर सकते हैं। बिकॉज ओपन एरिया में करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ या फिर कहीं ना कहीं नेचुरल ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ हम अपनी प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोडक्शन हो गया, अब उस प्रोडक्शन को हमें मार्केट में पहुंचाना है। सो हाउ वील मींस सेंड दैट प्रोडक्शन और सेंड दोज प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, सो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। सो वी ऑल्सो रिक्वायर डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, राइट। तो हमने प्रोडक्शन यूनिट से हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, फैक्ट्री में पहुंचाया, फिर फैक्ट्री से हम लोग हो सकता है उसको मार्केट में पहुंचा दें उस आउटपुट को। तो मार्केट में जब हम पहुंचाएंगे तो देखिए, पहले मार्केट में जब हम पहुंचाएंगे तो वहां से क्या आएगा, मनी आएगी, और मनी आएगी तो फिर कहाँ जाएगा, वो दोबारा से उस प्लांट में जाएगा। तो जो प्रॉफिट बचेगा वो किसके पास चला जाएगा, ऑनर के पास में, और बाकी का हमारे किस में चला जाएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस basically takes place in the location of industries, right? Now some important factors which affect the industrial location, मतलब इंडस्ट्रियल लोकेशन को हम जब भी कहीं पे लोकेट करते हैं तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सम जोग्राफिकल फैक्टर्स वी आर हैविंग एंड सम नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स वी आर हैविंग। जोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब आपके जो मेनली फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे लैंड हो गया। कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो हिली एरियाज में भी स्टेब्लिश है, बट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज आपकी कहाँ पर स्टेब्लिश हैं, प्लेन एरिया के अंदर। सो वी कैन से दैट टोपोग्राफी ऑफ द लैंड ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इन प्लेन एरियाज वी कैन परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज ईजिली। सो लैंड ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो लैंड मैक्सिमम हमारे प्लेन एरियाज के अंदर हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश होती हैं। और देखिए, फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ raw material into finished products, we require water, right? So availability of raw material, then we can say water is also, we can say availability of water, that is also very important, right? So availability of raw material मतलब हमने कहीं पर भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं, अगर हमें रॉ मटेरियल बहुत दूर से डिस्टेंस से लेके आना पड़ रहा है तो हमारी कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी,
ठीक है। तो जहाँ पर हमारे को रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा उन एरियाज में हम मेनली इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करेंगे। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर। देन एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज, मतलब वहाँ पर हम देखिए सेकेंडरी सेक्टर में मैक्सिमम किस तरीके की मशीन्स का यूज़ करते हैं, सिंपल पावर ड्रिवन मशीनरीज का, मतलब पावर इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलने वाली मशीनरीज का हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर प्रॉपरली पावर सप्लाई है या नहीं है, दैट ऑल्सो पुट्स टू मच इंपॉर्टेंस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे रिको एरियाज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहाँ पर पावर सप्लाई सब्सिडाइज रेट पर भी मिलती है, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट डेवलप कर रही है जहाँ पर बहुत सारी रिबेट फैसिलिटीज़ पे आपको पावर जनरेशन मिल रहा है, बिल्डिंग मिल रही है, फिर अदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है। तो एनर्जी और पावर रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। देन सूटेबल क्लाइमेट, देखो वेदर हम कभी नहीं देखते, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, वेदर वी कैन से दैट अ डे टू डे एंड आवर टू आवर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड वेदर, जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। बट क्लाइमेट क्या होता है, बहुत लंबे टाइम पीरियड में जाके चेंज होता है, राइट। तो हम सूटेबल क्लाइमेट भी देखते हैं कि जो हम जिस तरीके की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या उसके लिए यहाँ पर क्लाइमेट सूटेबल है, ठीक है। और एबिलिटी ऑफ मीन्स हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ वाटर, जो हम देखते हैं जोग्राफिकल फैक्टर, वहाँ पर हम मेनली परमानेंट सोर्सेज ऑफ वाटर देखते हैं, या फिर रिवर बैंक्स पे जब मेनली इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो कौन सी रिवर्स के हम साइड में हम लोग मेनली इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पर पेरेनियल रिवर्स हैं, जहाँ पर परमानेंट रिवर्स हैं। परमानेंट रिवर मतलब जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, अदरवाइज हम सरफेस वाटर पे कम बिलीव करते हैं। तो इसलिए हम इंडस्ट्रीज को ज़्यादा लोकेट वहाँ करते हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत हाई होता है, या फिर एवरेज मीन्स ग्राउंड लेवल वाटर होता है, वहाँ पर हम मेनली इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वी कैन से दैट जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट यू कैन से लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एनर्जी, पावर रिसोर्सेज, suitable climate, availability of water, these are important geographical factors. Now some non-geographical factors we are having. Capital, paisa. Right, so whenever we used to start any or whenever we used to locate any industry in any area or we can say on any site, first we require money. मतलब पैसे के बगैर हम किसी भी तरीके की इंडस्ट्री को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। सो कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन लेबर, काम करने के लिए हमें मैन पावर भी चाहिए, तो लेबर ऑल्सो पुट्स टू मच इंपॉर्टेंस वाइल लोकेटिंग एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री इन एनी एरिया, राइट। सो बेसिकली वी यूज टू अपॉइंट चीप लेबर्स। सो जहाँ पर चीप लेबर्स की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी वहाँ हम इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। देन मार्केट, एट द एंड आपने कोई भी प्रोडक्शन किया, फॉर दैट यू रिक्वायर मार्केट। इफ़ यू आर नॉट हैविंग मार्केट देन द प्रोडक्शन basically we can say that through that production we cannot earn any kind of profit, right. So market, that is also very important, right. And it with this we can also include transportation, right. Only through transportation system or we can say communication system we can easily transport our products into the markets, we can easily supply labor to the we can say to the industry or to the factory. So transportation also plays very important role, and with the transportation communication also plays too much important. So transportation and communication, they both plays very important role for we can say locating any kind of industry. So we require developed or we can say developed mode of transportation and communication system, चाहे वो किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे लैंड, एयर, वाटर, कैसा भी ट्रांसपोर्टेशन हो, वी रिक्वायर डेवलप्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इवन नाउ डेज वी कैन से दैट ड्यू टू द development of IT sector, our communication system is also developed. So we can say that developed communication system also we require. Then at the end, the last factor that we can say, that is government policies or we can say financial advice. देखो गवर्नमेंट पॉलिसी कहीं पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट लाइसेंस भी देती है, तो लाइसेंसिंग पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं. तो मीन्स जब से हमने हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज किया, मतलब जब से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप बोलते हैं LPG, मतलब 1991 में जब से उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, तब से हमारी गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एज वेल एज वी कैन से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट्स, दे आर अडॉप्टिंग लिबरल पॉलिसीज to increase or we can say for the development of manufacturing sector, right. So government policies, they also plays very important role while locating any kind of industries. हर स्टेट की गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिसीज होती हैं. सो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर जो हाईली डेवलप्ड है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कुछ में बहुत कम है. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल while locating any kind of industry. To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.